Good afternoon. कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बुक में से पढ़ा था अपन ने, कर लेना. स्टार्ट करें. The importance of offer and acceptance in giving effect to a valid contract was explained in the previous paragraphs. One important common requirement for both offer and acceptance is their effective communication. Effective and proper communication prevents avoidable revocation and misunderstanding between the parties. When the contracting parties are face to face, there is no problem of communication because there is instantaneous communication of offer and acceptance. In such a case, the question of revocation does not arise since the offer and its acceptance are made instantly. यहाँ पर वो रूल लागू होता, वो lighted matchstick to a grain of gunpowder. ठीक. The difficulty arises when the contracting parties are at a distant place, मतलब वो आमने सामने खड़े नहीं हैं, at a distance from one another, and utilize the service of the post office or telephone or email, that is internet. In such cases, it is very much relevant for us to know the exact time when the offer or acceptance is made or is set to complete. The Indian Contract Act 1872 gives a lot of importance to time. Gives a lot of importance to time. Time एक essential element होता है, expressly भी और in some cases impliedly भी. Expressly भी होता है और impliedly भी होता है. Impliedly मतलब वो reasonable time हो गया, वो ऑटोमेटिकली टाइम एक कंडीशन बन जाता, और कुछ केसेस में टाइम को कंडीशन बनाया जाता है. समझा क्या? हाँ. नहीं, पेरिशेबल में इम्प्लाइड है वो. पेरिशेबल के केस में इम्प्लाइड है कि टाइम एक कंडीशन है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर एक्सप्रेसली बताना पड़ेगा कि टाइम एक इम्प्लाइड कंडीशन है. आगे. The Indian Contract Act 1872 gives a lot of importance to time element in deciding when the offer and acceptance is complete. Communication of offer in terms of section 4. Section 4 of the act, the communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. Comes to the knowledge of the person to whom it is made. Comes to the knowledge. Important words. Comes to the, ये अपन ने लेटर में पढ़ा है, वो लेटर ऑफ ऑफर एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस. लेटर ऑफ ऑफर मतलब ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी. कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी. कम्स टू द नॉलेज ऑफ. ठीक है. ओके. समायरा बता, ऑफरर कौन रहता और ऑफरी कौन रहता? पक्का देख ले, जिसको ऑफर किया वो ऑफर ही रहता. तो अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? किसने लेटर भेजा ऑफर का? ऑफर का लेटर किसने भेजा? ऑफर का लेटर कौन भेजेगा? ऑब्वियसली. हाँ. और ऑफर ही को भेजा, लेकिन कब बोलेंगे कि ऑफर ही को कम्युनिकेट हो चुका है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफर. नॉलेज में कैसे आएगा बता राधिका? करेक्ट. वो जब तक उसको पहुंच जाएगा और जब वो खोलकर पढ़ लेगा लेटर, देन इट विल बी सेड टू बी कम्युनिकेटेड. अभी क्या कम्युनिकेट हुआ है? सिर्फ. क्वेश्चन. ऑफर कब तक के रिवोकेबल है, मतलब ऑफर कब तक के कैंसिल किया जा सकता है? बोल. अरे यार गलत ही बोलता तू चैतन्य. बोल शिखा. वेरी गुड. ऑफर कैन बी रिवोक्ड अंटिल इट इज एक्सेप्टेड. नॉनसेंस जवाब देता एकदम तू. सब रिकॉर्डिंग में जा रहा, तेरा नाम भी चला गया. हाँ. ऑफर कब तक के रिवोक हो सकता, मतलब ऑफरर अपना ऑफर कब तक कैंसिल कर सकता, ये क्वेश्चन था. बोलो आंसर. तो आंसर इज जब तक के वो एक्सेप्ट नहीं हो जाता तब तक के वो रिवोक हो सकता. एक्सेप्टेंस के बाद वो रिवोक क्यों नहीं हो सकता शिखा? क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया बोले, इसलिए रिवोक नहीं हो सकता. हाँ वो भगवान है. हाँ बोलो. Because offer is now converted into agreement immediately after acceptance. और अगर वो एक वैलिड अग्रीमेंट है तो फिर वो बन गया एक कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप तोड़ नहीं सकते. समझा क्या? अभी क्लियर है? पक्का? देख लो. ओके. आगे. So in terms of section 4 of the act, the communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. Example.
where A makes a proposal to B by post to sell his house for rupees 5 lakhs. कैसे भेजा? And if the letter containing the offer is posted on 10th March, posted on मतलब उसने सेंड कब किया? 10th मार्च को पोस्ट ऑफिस को दिया, भैया भेजना है, ठीक है, आगे. एंड इफ दैट लेटर रीचेस बी ऑन 12th मार्च, लेटर कब मिला? अब मेरे को बताओ दोनों में से कौन सी तारीख मानेंगे कम्युनिकेशन की? 12th ऑफ क्यू काइकू नॉलेज में कब आएगा? 12th मार्च को नॉलेज में आएगा. समझा गया चाहे तू? आगे. 12th March, the offer is said to have been communicated on 12th March when B received the, और जैसे रिसीव होगा वो क्या करेगा? फाड़ के फेंक देगा. But still it will be said to be communicated. आगे. Thus it can be summed up that when a proposal is made by post, proposal is made by, its communication will be complete when the letter containing the proposal, its communication will be complete when the letter containing the proposal reaches the person to whom it is, reaches the person to whom it is. इधर लेटर एक बार उसको रिसीव हो गया, डीम्ड है कि ऑफर कम्युनिकेट हो चुका है. और ऑब्वियसली एक और स्टेटमेंट, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made. अब मैं इस एग्जांपल में छोटा सा चेंज कर रहा, छोटा सा, एकदम छोटा सा, ठीक है. 10 तारीख को पोस्ट किया, 12 तारीख को लेटर उसके घर पहुंचा, उसने खोल के 14 तारीख को पढ़ा. बताओ कम्युनिकेशन का डेट कौन सा? हाथ ऊपर बोल. सृष्टि. 14th क्यों सृष्टि? तब उसके नॉलेज में आया. तो एज पर केस स्टडी जब हम उसको पढ़ रहे होते हैं तो खुद को पार्टी इमेजिन मत करो कि इसको कैसे मालूम पड़ेगा ऑफरर को कि उसने 14 तारीख को खोल के पढ़ा. ये सोचने लग जाते तुम तुरंत, है ना? हाँ, सो मी. तो 14 तारीख को अपने को केस पढ़ना है, और केस ऐसा पढ़ना जैसे कि तुम्हारे सामने पिक्चर चल रही, तुम उसका पार्ट, हाँ, यू आर नॉट द पार्ट, यू जस्ट हैव टू सी क्या क्या दिया हुआ है. बोले 10 मार्च एक डेट दी हुई है, दूसरी डेट थी 12th मार्च, तीसरी डेट थी 14th मार्च, राइट? हाँ, 10 मार्च को क्या हुआ? पोस्ट हुआ था. 12th मार्च को क्या हुआ? रिसीव हुआ था. और 14th मार्च को क्या हुआ? हमें समझा क्या? तो तीनों में से कम्युनिकेशन की डेट कौन सी है? अगर मैं थोड़ा सा सवाल में थोड़ा सा स्लाइड सा चेंज कर दूं तो जवाब क्या हो सकता है, तुम बताना. चेंज ये कि ऑफरर के पर्सपेक्टिव से अगर सोचूं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑफरर, तो व्हेन इज इट कम्युनिकेटेड? 12th मार्च. पक्का? 10 क्यों नहीं? उसको भी मालूम है 10 तारीख को तो उसने पोस्ट किया. समझा? पक्का. फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑफरी, कब? 14th ऑफ मार्च, बिकॉज दैट केम नॉलेज. ओके, वेरी गुड, डन. बोलो. तो फिर 12th मार्च, करेक्ट. समझा क्या? जैसा कि एग्जांपल में दिया हुआ था, वहां पर 14th मार्च का जिक्र है ही नहीं, 12th मार्च बताया गया कि रिसीव कब हुआ? 12th मार्च को. तो कंसिडर द डेट 12th मार्च एज इट इज. समझा? आगे. मेयर रिसीविंग ऑफ द लेटर इज नॉट सफिशिएंट. देखा, खुद के पॉइंट को खुद ही बोल देते हैं. हाँ हाँ, सफिशिएंट नहीं रहता लेटर रिसीव करना. आगे. ही मस्ट रिसीव और रीड द कंटेंट और द मैसेज कंटेंट इन दी लेटर. मतलब रिसीव करना है और एक्चुअल लेटर खोल कर उसको रीड करना जरूरी है, तब बोला जाएगा कि वो कम्युनिकेट हुआ है. समझा? पक्का. He receives the letter on 12th March, but he reads it on 15th of March. आ गया अभी? हाँ, तो कब बोलेंगे communicated? 15th of. So in this offer, in this case, offer is communicated on 15th of March and not on 12th, because knowledge में कब आया? 15 मार्च को. समझा क्या? हाँ, तो लॉजिकली ऑफर ही के पर्सपेक्टिव से ही आंसर है वो. लेकिन तुमको पर्सपेक्टिव रखना ही नहीं है, यहाँ पर बोला ही नहीं है. मैंने सिर्फ वो सवाल किया ताकि मैं देख रहा था कि तुमको समझा है क्या, पर्सपेक्टिव रखना भी कैसा होता है या फिर पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखते हैं, इसलिए पूछा था. ठीक है, जहाँ नहीं दिया हुआ है वहाँ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, वो मेरा काम है. Communication of acceptance. There are two issues for discussing and understanding. They are the modes of acceptance and when is acceptance complete. मोड क्या यूज किया गया है? मोड. तो मोड क्या हो सकते हैं? ईमेल हो सकता, व्हाट्सएप हो सकता, कॉल हो सकता, लेटर हो सकता, दैट इज. हाँ, वही पोस्ट लेटर एक ही बात होगी ना.
हाँ लेटर ही पोस्ट करती है, लेटर ईमेल में थोड़ी भेजते. लेट अस first consider the modes of acceptance. Section 3 of the act prescribes in general terms two modes of communication, namely दो modes, namely by an act or by omission. अब ये पहले समझा दो, what is by act and what is by omission. क्लू के तौर पे अगर मैं तुमको बोलूं तो तुमने पढ़ा है ऑलरेडी, बोलो. करेक्ट. बाय एक्ट टू डू समथिंग एंड ओमिशन नॉट टू डू समथिंग. समझा? बाय एक्ट टू डू समथिंग, ओमिशन नॉट टू डू समथिंग. मैं वर्ड्स याद रखना हमेशा. जितना ज्यादा तुम्हारी वोकैबुलरी अच्छी होंगी उतना ज्यादा लॉ अच्छा होगा. जितना तुम्हारा वोकैबुलरी ठस माथे का होगा उतना ही तुम्हारा लॉ तुमसे दूर भागेगा. मैंने लॉ बोला, लव नहीं. हाँ. हाँ मैं बता रहा, क्लियर कर रहा. So let us consider the modes of acceptance. Section 3 of the Act prescribes in general terms two modes of communication, namely by any act by omission intending thereby to communicate to the other or which has the effect of communicating it to the other. Effect of communicating it to the other या फिर directly communicating it to the other. वो sentences पे मत जाओ, waste of time है. सिर्फ तुम दो words याद रखो, एक है by act और दूसरा by act और दूसरा by omission. और पहला उधर क्या देखना पड़ता बार बार, दो ही तो शब्द है. तेरा नाम क्या है बोल? अनिरुद्ध. हाँ फिर राठौड़ के सामने क्या लगाएंगे? अनिरुद्ध के सामने क्या लगाएंगे? फिर एक्ट, ओमिशन. देखा? सिंपल. कम्युनिकेशन बाय पोस्ट would include any expression of words whether written or oral. written या तो, अब ये देखो, ये डे 1 से पढ़ाते आ रहा मैं, अब नहीं बताने वाला रिटर्न क्या रहता, ओरल क्या रहता. Written words will include letters, telegram, faxes, emails and advertisement. Oral words will include telephone messages. मेरा सवाल, एडवर्टीजमेंट को कहाँ डालोगे? हाथ ऊपर. एडवर्टीजमेंट इज व्हाट? क्वेश्चन मार्क. अब कोई ऑप्शन नहीं मिलते, अब बच्चे नहीं रहे तुम, बड़े बच्चे हो गए. बोल मानसी. वेरी गुड. इनविटेशन टू ऑफर. गेट मी एन एग्जांपल टू एग्जांपल चाहिए मेरे को एडवर्टीजमेंट के लिए. एडवर्टीजमेंट के लिए एग्जांपल चाहिए. ऑक्शन ठीक है चलेगा, लेकिन वो इनविटेशन टू ऑफर का एग्जांपल है. मैंने एडवर्टीजमेंट के लिए एग्जांपल पूछा, अभी भी बोल रहा हूँ. नहीं ना. न्यूज़पेपर के अंदर पेपर कटिंग, वही ना न्यूज़पेपर कटिंग ना. न्यूज़पेपर में आर्टिकल छप गई, ऐड, तो वही रहती ना एडवर्टीजमेंट. और क्या रहती? और एक आधी एग्जांपल. और कौन सी रहती? अपन ने एसपी में पढ़ा है क्या कोई? प्रोस्पेक्टस. क्या इतना क्या मतलब यार लोग. हाँ तो मेरी मर्जी. Oral words will include telephonic messages. Again, communication would include any conduct intended to communicate like positive acts. एक नंबर ये कर लेंगे अपन ऐसा. वो signs are also a part of communication. So again, communication would include any conduct intended to communicate like positive acts or sign so that the other person understands what the person acting or making signs means to say or means to convey. ठीक है, ऑब्वियसली एक्शन से ये बात प्रूव हो जाती है. जैसे किसी ने ऑफर दिया, समझा? वो विमल. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन to do something. Such omission is conveyed by a conduct or forbearance on the part of one person to convey his willingness or assent. However, silence would not be treated as communication by omission. वो rule, an offer must not contain a term the non-compliance of which would amount to. बस लर्न हो गया तुमको. Example 45. A offers rupees 50,000 to B. कितने? हाँ मैं A हूँ, ठीक है. बी कोई नहीं है. ए ऑफर्स रुपीज 50,000 टू बी. ए ऑफर्स टू ए, कौन है वो? नहीं मेरे को सुनाई दिया. सुनाई दिया क्या? नहीं. हाँ बोल. हाँ. So A offers rupees 50,000 to B if it does not arrive before the court of law as an evidence to the case. 50,000 रुपए किस बात के लिए? नॉट टू डू समथिंग के लिए. वेरी गुड. देखो कैसे समझा नॉट टू डू समथिंग है. उसने क्या बोला वहां पे इंग्लिश में? हाँ ओके वेरी गुड, समझ गया. जिसको इंग्लिश आती है उसको समझेगा, नहीं आती तो
करते बैठो ट्रांसलेशन हैं, एग्जाम्पल है, अलाउड नहीं है ऐसा। दिस इज स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन या फिर इंटरफियरेंस विद इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। ज्यादा इंग्लिश हो गई, आसान भाषा में आपने लॉ की प्रोसीडिंग्स में मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में दखल दिया है। हाँ, तो दिस इज अ क्राइम। ठीक। So A offers rupees 50,000 to B if it does not arrive before the court of law as an evidence to the case. B does not arrive on the date of hearing of the court. Here omission of doing an act amounts to acceptance. समझ गया? Omission का मतलब समझा? Not to do something. बस ये याद रखना. Omission not to do. Okay. Communication of acceptance by conduct. By conduct बोले तो कौन सा acceptance हो गया? Implied. कौन सा? तो पढ़ना है क्या? Waste of time है ये. फिर भी पढ़ लेते हैं. For instance, delivery of goods at a price by a seller to a willing buyer will be understood as a communication by conduct to convey acceptance. मतलब क्या हुआ देखो, जाम आ रहे हैं अभी, जाम बढ़िया, तुम जाम खरीदने गए, तुम गए उसको बोला डायरेक्ट, उसने बेचारे ने कुछ नहीं बोला, वो जाम का ठेला लेके खड़ा है, तुमने उसको बोल दिया भैया 40 रुपए किलो दे दो 1 किलो, वो भैया ने डायरेक्ट जाम भरना चालू कर दिए। उसके एक्शंस क्या जस्टिफाई कर रहे हैं? implied acceptance, that is acceptance by conduct. सर एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट लिखना है या implied acceptance लिखना, जो तुम्हारा मन करे वो लिखो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों भी सही है। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, कंडक्ट मींस implied, that is by actions. Okay, the first act is a conduct of acceptance against its communication to the offer by the public transport authority to carry any passenger. फिर से, the first act is a conduct of acceptance against its communication to the offer by the public transport authority to carry any passenger. ये इसका मतलब ये हो गया, तुम डायरेक्ट बस में चढ़ गए, what does it mean? तुमने एक्सेप्ट कर लिया बस में बैठना और तुम बस से ट्रैवल करेंगे और ट्रैवल करने के पैसे भी देंगे, हाँ ये भी रहता, हाँ महामंडल पप्पा की थोड़ी है। The second act is again a conduct conveying acceptance to use the weighing machine. weighing machine कहाँ देखे? रेलवे स्टेशन देखे? वो ऐसे लाइटें वाली चली रहती है, ऐसे लाइट चलती रहता है वहाँ पे, फिर वजन, तुम जाते, तुमको लगता गेम है, गेम है, तुम जाते उसके ऊपर, कुछ होता नहीं, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा तुमको बोलते वो गेम है बेटा, गेम है, गेम है, तुमको तब मालूम नहीं था कि उसके अंदर पैसे भी डालने पड़ते। उस दिन तुमको मालूम पड़ा कि मम्मी पापा अपने पे बिल्कुल पैसा खर्चा नहीं करते। वो 2 रुपए भी खर्चा नहीं कर पाए उस दिन। लेकिन अब तुम खुद जाते 5 रुपए डालते, उसके ऊपर खड़े रहते, ऑटोमेटिक एक टिकट बाहर आता। यहाँ पर तुमने कोई वर्ड्स यूज किए क्या? नहीं। क्या किया? बाय एक्शंस। इसका जवाब जो देगा ना उसको सही में चॉकलेट दूंगा मैं। ये जो एग्जाम्पल अभी हुआ है, ये जो भी मैंने दिया कि रेलवे स्टेशन पे कोई मशीन है, वेइंग मशीन है, तुम गए, तुम खड़े रहे, 5 रुपए अंदर डाले, एक तुमको वेट का तुमको चिट्ठी बार आया, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट का टाइप है? टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? हाथ ऊपर करके जवाब देना। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आई सही में गिव यू चॉकलेट कल पर, हा? अभी लाया नहीं ना मैंने, हाँ। बोलना नहीं, ए डिस्कशन की दुकान। बोल वैभव। गलत जवाब, एक ही चांस है हाँ सबके पास। बोल धीरज। गलत जवाब। हाँ ना, एक 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 बोलते जाएंगे, हो जाएंगे बेटे, ऐसे थोड़ी रहता। बस ये लास्ट, ये लास्ट है। नहीं नहीं तो 10 12 और बोल ले। बोल। नहीं, बट क्लोज इनफ। हाँ क्लोज इनफ। जवाब मैं दे दे रहा, अच्छा है, चॉकलेट मिलेगी। चल बे। टैसिड कॉन्ट्रैक्ट है आंसर। टैसिड, नहीं 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 नहीं, टैसिड कॉन्ट्रैक्ट है आंसर ना, बता दे, इम्प्लाइड, एक ही बार बोला था मैंने आंसर देने का। टैसिड कॉन्ट्रैक्ट ये उसका एग्जाम्पल था, मतलब टैसिड कॉन्ट्रैक्ट वाज द आंसर। एक ही चांस था सबको,
तूने दो दो बार बोला, ऐसे थोड़ी चलता। तो मैंने हाउ बोला ना, क्लोज इनफ। नो नो नो, इट्स नॉट करेक्ट एट ऑल। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है। उधर टैसिट में अपन ने पढ़ते वक्त क्या पढ़ा था? एटीएम मशीन पढ़ा था। एटीएम मशीन एग्जाम्पल के लिए। बताओ। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। एक्सप्रेस इम्प्लाइड, इम्प्लाइड के अंदर आएगा वो। हाँ। यू मिस द चांस। क्या? एक और। हाँ। हाँ। तेरी बाजू वाली को वैसी कॉम्प्लेक्शन हो जाता जैसे मैं क्वेश्चन करता, वो इधर उधर डिस्कस करने लग जाती। जिसको बोला उसको समझ गया नहीं? वेदिका खंडेलवाल। चलो, फॉर इंस्टेंस, डिलीवरी ऑफ गुड्स, सॉरी, the second act is against again a conduct conveying acceptance to use the weighing machine kept by the vending company as an offer to render that service for a consideration. वॉरेन बफेट की शुरुआत यहीं से हुई थी। वॉरेन बफेट ने पहली बार किसी कंपनी के शेयर में पैसे बनाए थे, और फिर उसने उन पैसों से गेम्स खरीदे थे और जगह जगह लगाए थे। उसके जहाँ वो रहता था ओरिजिनली, जहाँ से वो ओरिजिनेट करता, वहाँ पर उसने अलग अलग जगहों पर उसके गेमिंग मशीन्स लगाए थे। फिर उससे उसको अर्निंग्स चालू हुई थी। फिर उसने गेमिंग मशीन के बाजू में चिप्स के पैकेट और बॉटल्स की वो मशीन रहती ना उनके यहाँ पे वो, तो अगेन तुम पैसे डालो ऑटोमेटिकली तुमको चिप्स का पैकेट नीचे से वो मशीन से निकलता है। वैसा उसने उसके बाजू में और एक वैसी वाली मशीन लगाई थी। तब उसने पैसे कमाए थे, और फिर उनसे कमाए हुए पैसों से उसने इन्वेस्टमेंट शुरू किया। फिर एक टाइम आया उसने पूरा बिजनेस बेच दिया, बेचा, प्रॉफिट में बेचा। ऐसा वॉरेन बफेट। आगे, और उसकी उम्र तब थी 12 साल, 12 से 15 साल आई गेस। हाँ। हम यहाँ पे यही कर रहे हैं, तेरी आँख्या का यो काजल। The other issue in communication of acceptance is about the effect of act or omission of conduct. These indirect efforts must result in effectively communicating its acceptance or non-acceptance. Waste of time. If it has no such effect, there is no communication regardless of which the acceptor thinks about the offer within himself. देखो, किसी के मान लेने से मतलब मैंने ऑफर दिया और मेरे मान लेने से कि इसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होगा, इसने या तो अपने मुंह से बोलना है हाँ, लिख कर देना है हाँ, या तो फिर एटलीस्ट ऐसे कोई सिग्नल्स देने हैं या एक्शन करने हैं जिससे पता चले कि ही इज टेलिंग हाँ। समझा अभी? Does if it has no such effect, there is no communication regardless of which the acceptor thinks about the offer within himself. Does a mere mental unilateral assent मैंने ऑफर किया, वैभव मन में, मन में, हाँ, तो ऐसा चलने वाला है क्या? नहीं। कोई टेलीपैथी कम्युनिकेशन है क्या इसके साथ? नहीं। फिर ऐसे समझेगा थोड़ी, समझाओ उसको कोई। Where a resolution passed by a bank to sell land to A remained uncommunicated to A, it was held that there was no communication and hence no contract. No communication and hence no contract. Central Bank Yavatmal versus Venkatesh Yavatmal। यवतमाल वाला यवतमाल। ये इंडिया का केस स्टडी है, नहीं लर्न करना है। यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता कम्युनिकेशन का, जो एक्चुअली पेपर में पूछा जाता। क्या अभी तक के क्या पढ़े? अभी तक समझ रहे थे थोड़ा बहुत? Let us now come to the issue of when communication of acceptance is complete. In terms of section 4 of the act, it is complete against the proposer, against the proposer from the point of view of offeree. प्रपोजर कौन रहता? ऑफर देने वाला। मतलब कौन? ऑफरर। समझा क्या? हाँ। सो अपन इसको ऐसे पढ़ते, एज अगेंस्ट द ऑफरर व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। इसका मतलब बताएगा कोई?
एज अगेंस्ट द ऑफरर, मतलब मैं स्टेटमेंट लगे तो कंप्लीट कर देता. एक्सेप्टेंस इज सेट टू बी कम्युनिकेटेड एज अगेंस्ट द ऑफरर व्हेन इट इज पुट इनटू ट्रांजिट. बोल. ऑफरर की तरफ से एक्सेप्टेंस, हाँ, पोस्ट कर देता जैसी उसके तरफ से कंप्लीट हो गया. लेकिन अभी रिसीव हुआ है क्या ऑफरर को? हाँ. हाँ. तो इसके लिए उन्होंने सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा, एज अगेंस्ट द ऑफरी, मतलब एक्सेप्टर. समझा क्या? पॉइंट समझ आया? फॉर द लास्ट टाइम इन दिस वर्ल्ड आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस. क्या मारा किसने? अच्छा, फोन चाहिए. किसने? सेंड ऑफ? सही में क्या? मजाक करेगा क्या? मेरे को यकीन नहीं हो रहा. हाँ, ये अच्छा रहेगा. हाँ ठीक है, इधर सुनो. तो ए इज द ऑफरर, ऑल्सो नोन एज, अबे रुकना, प्रॉमिसर रुकना जरा, प्रपोजर है ना वो. फिर और बी कौन? ऑल्सो नोन एज, देखो, इन दिस वर्ल्ड दिस इज सो अनट्रू. अब वो जिसको जोक समझेगा उसको समझेगा, नहीं समझा तो नहीं समझेगा. ठीक है. हाँ. दिस इज सो नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स. ठीक है. बी को एक्सेप्टर बुलाना इज फॉल्स. अब तुम सोचते बैठना कि क्यों, कैसा, कैसे, कैसे बोला सर ने, क्यों बोला होगा सर ने, ऐसा सोचते बैठना. रात को सपना भी आएगा तुमको एक. ठीक है. हाँ, लेकिन इस बुक के हिसाब से इट इज ट्रू कि द ऑफरी इज द एक्सेप्टर. ठीक है. इस बुक के हिसाब से इट इज ट्रू, द ऑफरी इज द एक्सेप्टर. समझ गया उसको? किसको नहीं समझा? अबे धीरज को तो मेरे बताने से पहले ही समझ गया था. लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस. पॉइंट समझो अब तुम यहाँ पे मेरा, ध्यान से सुनना. देखो, जब बोला जाता एज अगेंस्ट द ऑफरर, या बोला जाता एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एज अगेंस्ट बोला ना, तो मतलब पर्सपेक्टिव किसका है? बी का. मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बी. ये समझा? आई राइट द स्टेटमेंट. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बी. ठीक है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बी मतलब कौन? ऑफरी या बोलो एक्सेप्टर. ठीक है. एज अगेंस्ट ए. अभी समझा? तो एज अगेंस्ट द ऑफरर या बोलो प्रपोजर. तो एज अगेंस्ट द प्रपोजर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बी. तो जब हमने ये स्टेटमेंट देखा एज अगेंस्ट द प्रपोजर, मतलब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे? बी. तो बी ने क्या किया? लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बनाया और तुरंत पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दिया. तो बी बोले मेरे पार्ट से तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुका है. बी ने ऐसा बोला, मेरे पार्ट से एक्सेप्टेंस कंप्लीटेड है. ये समझा? मगर अभी किसके पार्ट पर बाकी है? ए को रिसीव होना बचा है. इसके लिए उन्होंने इसको दो डिवीजन दिए. ये पहला था और अब दूसरा. क्या? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बी. अब समझा क्या? एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ए. अब समझा क्या हुआ? बी के हिसाब से एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हो गया? जब उसने लेटर पोस्ट कर दिया. उसके हिसाब से एक्सेप्टेंस दे चुका वो. लेकिन ए के हिसाब से कब कंप्लीट होगा? जब वही पोस्ट किया हुआ लेटर उसको रिसीव हो जाएगा, तब ये बोलेगा हाँ एक्सेप्टेंस हो चुका है. समझा? तो ये दूसरा वाला, ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ,
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए, दैट इज द ए कौन था, ऑफरर, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रपोजर. अभी समझा, प्रपोजर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रपोजर एज अगेंस्ट एक्सेप्टर. क्लियर है? अब देखो इधर क्या क्या लिखा हुआ है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर और दूसरा लिखा हुआ है एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर. मिला क्या? हाईलाइटेड देखो सिर्फ, बाकी स्टेटमेंट जाने दो अभी. एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, ये ठीक है पक्का. अब जोड़ना है तुमको बस. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सेप्टर एज अगेंस्ट द, when the letter is posted, acceptance is completed. समझा? तो पूरा स्टेटमेंट सुनना. मैं पूरा स्टेटमेंट बना के बता रहा हूं. The acceptance from the point of view of acceptor is completed as against the proposer when the letter of acceptance is posted. Clear up? Or sentence 2. Acceptance is said to be complete from the point of view of offerer as against the acceptor when he receives the letter and it comes to the knowledge of him. पक्का? अभी सोचते रहना. आप बोलो. Okay? As against the proposer when it is put in the course of transmission to him, so as to be out of the power of the acceptor to withdraw the same. Simple. पहले नहीं था ना delete for everyone. नहीं समझा? Disappearing the message, वो पहले नहीं हुआ करता था. तो पहले क्या था, लेटर पोस्ट हो गया तो हो गया, अब हो गई गलती. समझा? ऐसा है वो. अब उससे पीछे हट नहीं सकते, लेटर तो जाएगा, तुम रोक भी नहीं सकते इसको. ये अब हुआ कि अब आप रोक सकते हो, पहले नहीं था ऐसा. तो पहले ये ऑप्शन नहीं था कि भाई लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को आप रोक सकते. तो आपको तुरंत अगर रियलाइजेशन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ, नहीं नहीं एक्सेप्टेंस करके गलती कर दी, तो तुरंत एक और लेटर भेजो, लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते. I'll ask you two things. Revocation of offer and revocation of acceptance. ये पूछ रहा हूं मैं, मुझे सिर्फ प्योरली इसका मीनिंग बताओ कि what do you mean by revocation of offer and what do you mean by revocation of acceptance. मेरे को सिर्फ इसका मीनिंग चाहिए, मुझे सिचुएशन भी नहीं चाहिए, मुझे एक्सप्लेनेशन भी नहीं चाहिए, प्रोसीजर भी नहीं चाहिए. सिर्फ बताओ मतलब क्या है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर का इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इसका मतलब क्या है. बोल प्राची. ऑफर कैंसिल करना इज रिवोकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस वाला कैंसिलेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. अब एक और सवाल, रिवोकेशन कब बोलोगे तुम? जब तुमने या तो ऑफर कर दिया होगा, उसके बाद रिवोक करेंगे ना. किया ही नहीं तो किसको रिवोक करेंगे? बरोबर है कि नहीं? जैसे क्या, मैंने पहले मैसेज कर दिया पर मुझे रियलाइज हुआ नहीं करना चाहिए था, तब करूंगा ना मैं डिलीट फॉर एवरीवन. अभी समझा? पॉइंट समझा क्या? यही वो पॉइंट समझा रहे तुमको कि ऑफर तो तुमने दे दिया, तब तुम ऑफर को रिवोक करने की बात करेंगे ना. अब समझा? सेम गोज विद एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस तुमने दे दिया, तब तुम उसको रिवोक करने की बात करेंगे ना. बात समझ आई? पक्का? तो ये दोनों मतलब रिवोकेशन ऑफ ऑफर अगर है तो मतलब ऑफर दे चुका है किसी ने, मतलब ऑफर दे चुका है कोई, उसके बाद उसके रिवोकेशन की बात होंगी. वो कब तक पॉसिबल है? जब तक वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं हो जाता तब तक के रिवोकेशन पॉसिबल है. काय का रिवोकेशन? ऑफर का रिवोकेशन. फिर से, रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब तक के पॉसिबल है? जब तक कि वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं हो जाता. ये ठीक? पक्का? जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो गया अब रिवोक कर सकते क्या? नहीं. रिवोकेशन ये स्टेप आएगा कब? ऑफर करने के बाद. अब समझा ना? हाँ, ये हो गया ऑफर का पार्ट. अब आते हैं एक्सेप्टेंस वाले रिवोकेशन पे. तो रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब? जब एक्सेप्टेंस ऑलरेडी दे चुका है, उसके बाद वो रिवोक करना चाहता है.
तो अगर फेस टू फेस एक्सेप्टेंस दे चुका है तो रिवोकेबल है कि नहीं है? क्यों नहीं है? तुरंत अग्रीमेंट बनाऊंगा ना, लाइटेड मैच स्टिक टू अ ट्रेन ऑफ, तो तुरंत क्या बना? अग्रीमेंट। सर कैसे? फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, ऑफर दिया, तुरंत एक्सेप्टेंस मुंह पे ही बोल दिया, हाउ सिंपल, खत्म हो गई बात। अब ये रिवोकेबल। लेकिन सर जहां पर टाइम लगता सर कि एक्सेप्टेंस यहां से रिलीज हुआ, अभी जाएगा, पहुंचेगा, उसको टाइम लगेगा, तो इस बीच थोड़ा चांस है। जैसे सर आपने मैसेज कर दिया, एक भी टिक नहीं आया, तो अभी भी चांस है कि आप उस मैसेज को रिवोक कर सकते हैं। इसका भी, इसके भी पॉइंट पर मतलब ये भी बात पता नहीं चलेगी। नहीं तो क्या होता, अपन मैसेज सेंड कर देते, डिलीट फॉर एवरीवन किया तो उसको भी मालूम आता, अपने को पता चलता, बराबर कि नहीं? पता तो चलता ही ना। लेकिन अगर मैसेज टिक हुआ ही नहीं, एक भी टिक नहीं आया, तो उससे पहले ही तुमने वापस डिलीट कर दिया, तो पता ही नहीं चलेगा कि मैसेज किया था, समझा? अब ये लेटर पर लेकर आते हैं कि उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सेंड कर दिया था, तो ये तो पहुंचने वाला है, आज नहीं तो कल पहुंचेगा तो सही, अब इससे पीछे नहीं हट सकते। लेकिन उसके रीड करने से पहले एक कोशिश तो कर सकते। क्या कोशिश कर सकते? हमारा एक्सेप्टेंस रिवोक करने की। तो क्या कर दिया, पहले भेज दिया लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, फिर भेजेंगे लेटर ऑफ रिवोकेशन। दोनों में से जो पहले पहुंचेगा वो माना जाएगा। अब समझा क्या? दोनों में से जो पहले पहुंचेगा वो माना जाएगा। इफ और पॉसिबिलिटीज मत निकालना। मालूम मेरे को क्वेश्चन मार्क आता है उसके ऊपर। लेकिन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और लेटर ऑफ रिवोकेशन आपने दोनों सेंड किया हुआ है। ऑब्वियसली आपने लेटर ऑफ रिवोकेशन सेंड क्यों किया? क्योंकि आपने पहले लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज चुके हो, लेकिन आपको रियलाइज हुआ नहीं भेजना चाहिए था, इसके लिए आपने तुरंत लेटर ऑफ रिवोकेशन भी इशू कर दिया, भेज दिया। अब दोनों में से जो पहले रिसीव होगा, किसको? ऑफरर को, वो मान लिया जाएगा। अब ये पता करना थोड़ा सा आसान भी है और कुछ किस्सों में टफ। आसान ऐसा है कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वाला पोस्ट पहले पहुंचा या लेटर ऑफ रिवोकेशन वाला पोस्ट पहले पहुंचा, ये देखना पड़ेगा। ये कैसे चेक कर सकते हैं आप? पोस्ट ऑफिस के डिलीवरी डेट से चेक किया जा सकता है। देखो कभी कभी चैट करते वक्त ऐसा होता कि आप मैसेज कर देते, तो आप जब पहले चैट ओपन करते तो मैसेज ऊपर बताता है और सामने वाले का मैसेज नीचे, लेकिन वो टाइम मिसमैच की वजह से फिर से जब आप वापस से वो चैट बॉक्स खोलते हो तो मैसेज नीचे दिखता उस वाले मैसेज के। कभी हुआ ऐसा? है ना, हुआ है ना? यही पॉइंट को पकड़ रहे अपन अभी, कि जब अपन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू कर चुके, दो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहले तुमने भेजा था और लेटर ऑफ रिवोकेशन बाद में भेजा था। तारीख ले लेते लगे तो, कि 12 मार्च को तुमने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा था और 13 मार्च को तुमने लेटर ऑफ रिवोकेशन भेजा, ये ठीक है? तो बाद में कौन सा गया? लेटर ऑफ रिवोकेशन। लेकिन पहुंच इवेंचुअली पहले वो गया, कौन सा? 13 मार्च वाला। तो ये पता कर सकते तुम कैसे, पोस्ट ऑफिस में फैसिलिटी है कि तुम पता कर सकते कि डिलीवर कौन सा हुआ पहले। हाँ, पॉइंट खराब कहाँ हो जाता? जहां दोनों भी एक साथ में पहुंचे। जहां दोनों एक साथ में पहुंचे हैं, तो एज अ आंसर राइटर तुमको ये ढूंढना है केस में कि दोनों में से पहला पढ़ा कौन सा गया है। एज अ आंसर, तुम आंसर राइटर हो, तो तुमको ये नहीं सोचना है कि मैं उसकी सिचुएशन में हूं, तुमको जो दिया है वो पढ़ना है। और क्या दिया रहेगा उसमें? क्लियरली एक स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा। क्या? ए ने पहले लेटर ऑफ रिवोकेशन खोलकर रीड किया, ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा। तो तुम क्या बोलेंगे? फाइनल आंसर क्या रहेगा तुम्हारा? एक्सेप्टेंस इज ड्यूली रिवोक्ड। अब इसमें कोई अग्रीमेंट कभी बना ही नहीं, क्योंकि रिवोकेशन पहले पढ़ा गया है। हम समझा? पक्का? तो देखो, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ये सिचुएशन सॉल्व करने के लिए टोटली रिलाय करना क्वेश्चन पर, खुद का दिमाग दौड़ाना नहीं, खुद को वहां कंसिडर करना नहीं। देखना ए अपनी जगह, बी अपनी जगह, वो उनका प्रॉब्लम है। अपने को क्या देखना है कि लेटर ऑफ रिवोकेशन पहले पहुंचा या लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहले पहुंचा। और इन केस इवेंचुअली दोनों साथ में पहुंचे भी होंगे तो दोनों में से पहले कौन सा पढ़ा गया है, बस तुमको ये ढूंढना है।
दैट्स इट। तुमको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, सर पॉसिबल ही नहीं है, वो तो झूठ बोलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं सोचना ही नहीं है। समझा क्या? ये दिमाग चलता है, आई नो, बट यू हैव टू सॉल्व इट। तो सॉल्व फैक्ट्स पर होता, इफ्स एंड बट्स पर नहीं होता है। जो फैक्ट्स दिए होंगे सामने, उस बेसिस पे सॉल्व होगा, इफ और बट पे सॉल्व नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी नहीं पूछी किसी ने तुमको, तुमको पूछा गया है कि वहाँ क्या लिखा है और उस लिखे हुए के बेसिस पे तुमको सॉल्व करना है। ठीक है? पक्का? प्रॉब्लम कोई? आगे। Where a proposal is accepted by a letter sent by post, the communication of acceptance will be complete as against the proposer when the letter of acceptance is posted. The communication of acceptance will be complete as against the proposer from the point of view of acceptor, मतलब offeree, when the letter of acceptance is posted, and as against the acceptor when the letter reaches the. Exactly. For instance, in the above example, if B accepts A's proposal and sends his acceptance by post on 14th. Repeat. If in the above example, if B accepts A's proposal and sends his acceptance by post on 14th March, the communication of acceptance as against A is complete on 14th, that is when the letter is posted. As against B, acceptance will be complete when the letter reaches A. Very simple. समझा? आगे. Here A, the proposer, will be bound by B's acceptance. अब वो ऑफर रिवोक नहीं कर सकता. अब यहाँ पर जो एक टेक्निकल डिफिकल्टी पैदा होती वो ये है कि सर ऑफरर को ये कैसे पता चलेगा कि ऑफरी ने एक्सेप्टेंस दे दिया है. समझा क्या? जैसे सिचुएशन बनाते हैं, देखो ए ने ऑफर किया 11 मार्च को, ठीक है, बी को लेटर ऑफ ऑफर रिसीव हुआ 12 मार्च को, ये ठीक. बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा 13 मार्च को, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब भेज दिया? 13th ऑफ मार्च. ए इज अनअवेयर अबाउट द लेटर, क्योंकि उसको पता कब चलेगा? जब उसको लेटर रिसीव होगा. बराबर है कि नहीं? ए को तब पता चलेगा, तो तब तक के वो अंधेरे में है ना. अब हो सकता है लेटर को 2 दिन डिले हो जाए. अब इस 2 दिन के डिले में, ये 2 दिन के डिले में अगर ए ने ऑफर रिवोक कर लिया सर, तो एक्सेप्टेंस का क्या होगा? एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं होगा, या फिर ऑफर रिवोकेबल नहीं रहेगा. रीजन, बी डेट वाइज प्रूव करेगा कि उसने ऑफर रिवोक होने से पहले ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू कर दिया था. ये समझा क्या? आ रहा हूं. कुछ पॉइंट समझ आया क्या? मैं तुमको सिचुएशन समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो. 13th ऑफ मार्च को उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज दिया, ये तो समझ आया. किसने? बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया. कितनी तारीख? 13 मार्च. इतना क्लियर? पक्का? प्रॉब्लम यहां तक? अब अभी मीन टाइम, जब तक के ए को वो लेटर रिसीव नहीं होता, मान लो ए को लेटर रिसीव हुआ 15 तारीख को, तो 12, 13, 14, ये 3 डेट्स तो ए को क्या लगेगा कि एक्सेप्टेंस हुआ नहीं है, क्योंकि उसको पता कब चलेगा? 15 तारीख को. बराबर है ना? तो 12, 13, 14, ये 3 डेट्स ही विल बी अनअवेयर अबाउट द लेटर, कि क्या हुआ है मेरे ऑफर का, एक्सेप्टेंस हुआ भी है या नहीं हुआ है, कुछ पता नहीं है. तो ए ने क्या किया? 15 तारीख को रिवोकेशन का लेटर सेंड कर दिया. कौन सा वाला? रिवोकेशन ऑफ ऑफर. ए ने सेंड किया रिवोकेशन ऑफ ऑफर. कितने तारीख को? 15 तारीख को. अब तुम बताओ, ऑफर रिवोक होगा या एक्सेप्टेंस माना जाएगा? रीजन एक्सेप्टेंस इसलिए माना जाएगा क्योंकि एक्सेप्टेंस 13 तारीख को ही दे चुका था वो. यहाँ पर मैटर रिसीव होने का नहीं है, यहाँ पर देखा जाएगा कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब भेजा गया. तो बोले सर रिवोकेशन ऑफ ऑफर से पहले ही एक्सेप्टेंस का लेटर भेज दिया गया था. ए ने ऑफर रिवोक किया 15 तारीख को, बी ने एक्सेप्ट किया 13 तारीख को. ये पॉइंट समझा क्या? बी ने एक्सेप्ट किया 13 को और ए ने रिवोक किया 15 को.
तो बोलो एक्सेप्टेंस या फिर रिवोकेशन ऑफ ऑफर? एक्सेप्टेंस। क्लियर? पक्का? ठीक है, आज के लिए यहीं रोकते, थैंक यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।